कर्च ब्रिज पर 1.5 महीने पहले यूक्रेन ने चेतावनी दी थी। 22 अगस्त को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया था, कर्च ब्रिज वी आर वॉचिंग यू। देखिए, यह है वो ब्रिज जो क्रीमिया को जोड़ता है, और उस ब्रिज का एक फुटेज, एक वीडियो ट्वीट करते हुए यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिखा था, वी आर वॉचिंग यू। क्या मतलब था, क्यों ये कह रहे थे कि हम तुम्हें देख रहे हैं? आज पता चल गया, आज दुनिया जान गई कि यूक्रेन ने ये क्यों कहा था 22 अगस्त को, कर्च ब्रिज हम तुम्हें देख रहे हैं। ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया था, और आज देखते ही देखते उस ब्रिज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन अब खुद कह रहा है, यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय खुद कह रहा है कि उन्होंने पहले मॉस्कोवा और अब उसके बाद ये कर्च ब्रिज, इन 2 जख्मों के बाद पुतिन बिलबिला उठे होंगे। जरूर पुतिन और रूस के जो तमाम बड़े अधिकारी, बड़े नेता इस वक्त इस हमले का, इस जख्म का जवाब देने के लिए जरूर मंथन कर रहे हैं। वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है जो हमें पता है, और उसके बाद रूस का क्या रिप्लाई होगा देखना होगा, क्योंकि हमारे संवाददाता मनीष झा आपको लगातार बता रहे हैं कि पुतिन ने यह तक कहा था कि अगर क्रीमिया ब्रिज पर कुछ हुआ तो वो न्यूक्लियर अटैक तक कर देंगे। तो क्या ये वॉर न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रही है? क्या ये वॉर अब वर्ल्ड वॉर में बदलने जा रही है? देखिए, एक बड़ा और अपडेट आपके सामने, ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने भी ट्वीट किया। ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने भी ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि हम लगातार, हमने एक बड़ा यहां पर नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कह रहे हैं, एवरीथिंग इलीगल Crimea, the bridge, the beginning, everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled। यानी कह रहे हैं जो यूक्रेन से छीना गया वो यूक्रेन को वापस मिलना चाहिए, जो गैर कानूनी है वो सब तबाह होना चाहिए। अब देखिए, और देखिए मेरे साथ इस वक्त यूक्रेन की एमपी, ज़ेलेंस्की की पार्टी की पॉलिटिशियन मारिया मेज़नसेवा है। मारिया, वेलकम ऑन TV9 भारतवर्ष। Thank you very much. Thank you. Hello from Ukraine. Okay, Maria. Maria, we can see that Crimean bridge has been attacked. The Kerch bridge is destroyed, and Ukrainian Defense Ministry is saying that these are the signs of illegality and it must be destroyed. So, can you confirm that Ukraine has attacked on this bridge? No, I cannot, and I am not reading this Twitter as Ukraine has attacked the bridge. We have the information from early morning, 6 a.m. Kiev time, that there was either a truck on the way or a truck on the railway which got blown up. But this is very random on the one hand, because everything which is crossing the bridge is being checked by Russian authorities, which temporarily occupy. Maria, hold on, Maria. Let me read that tweet for you and for my viewers and for your Ukrainian people. I have read this tweet. Yeah, I have read this tweet, okay. And I think, and I'm just trying to explain to everyone who can hear us, everyone who can see us right now on air, that Russians could have created a provocation. And I would like to inform you, dear friends, that currently the petrol is running out at the Crimean petrol station. People are queuing, and the queue is already more than. But tell me one thing, Maria, okay. Tell me one thing. Everything illegal must be destroyed. Everything stolen must be returned to Ukraine. Everything occupied by Russia must be expelled. That is the tweet of advisor of Zelensky. What does that mean? This is a general legal ground for saying that everything that was illegally temporarily occupied will return back to Ukraine and regaining our territories of 1991 is something we will do regardless illegal referendum, regardless everything that Russia is doing currently against international law. Thank you, Maria. Thank you. Thanks for connecting with us. तो मारिया यहाँ पर यूक्रेन में एमपी ज़ेलेंस्की की पार्टी की पॉलिटिशियन वो कह रही हैं कि अभी हमें टाइम लगेगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्वीट को कह रही हैं कि हाँ ये तो सही है कि ये इलीगल है, गलत है और इसको वापस आना चाहिए। लेकिन देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान भी हैं। मेरे साथ यहाँ पर एवीएम ओपी तिवारी साहब हैं, मेरे साथ एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हैं और मेरे साथ मनीष झा भी हैं। इस वक्त मनीष इस वक्त रूस में हैं, लगातार आपको वहाँ से वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पर क्या आ रहा है।
मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। हमारे जो दो मेहमान हैं, आप दोनों का स्वागत है सर, आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन मनीष देखिए, यूक्रेन में अभी इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। डिफेंस मिनिस्ट्री तो साफ कह रही है कि हमने मॉस्को डुबोया और हमने यहां पर एक और जो रूस के जो जुल्मों का प्रतीक है कर्च ब्रिज, उसको ढहा दिया। वहां से आप क्या बता सकते हैं, बताइए इस बारे में। बिल्कुल गौरव, देखिए यूक्रेन की एमपी मारिया को मैंने भी सुना, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ है और इसीलिए वो इस तरह का जवाब दे रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सुबह का वक्त मॉस्को में सूरज निकला था, काफ़ी उजाला था, लेकिन इस समय आसमान में घने बादल छा गए हैं। यही तकरीबन हालात अभी रूस के हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे का वक्त रूस के कब्जे के क्रीमिया पुल पर, रूस के प्रतिष्ठा के सवाल क्रीमिया पुल पर एक धमाका होता है। आग की लपटें इतनी तेज होती है और धुएं का गुबार निकलता है, और अगर मैं साहित्यिक भाषा में कहूं तो उस धुएं के गुबार की वजह से अभी फिलहाल मॉस्को में घने बादल छाए हुए हैं। नहीं तो मनीष, मुझे ये बताइए मॉस्को में क्या चल रहा है। मनीष, हमारे व्यूअर अब ये जानना चाहते हैं कि पुतिन का रिप्लाई क्या हो सकता है। पुतिन को यूक्रेन ने जो गिफ्ट दिया, पुतिन उसका क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पुतिन रिटर्न गिफ्ट में तो क्रीमिया वापस देने से रहे, पुतिन रिटर्न गिफ्ट में यूक्रेन के उन 4 राज्यों को तो देने से रहे। लेकिन मैं आपको अभी कैमरे के जरिए उन जगहों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि मॉस्को में अभी क्या चल रहा है। देखिए, अभी तक जो मॉस्को में आप सामान्य हालत में सब चीज़ों को देखते हैं, उसकी वजह यह है कि मॉस्को के इन लोगों को अपने प्रेसिडेंट पर, अपनी सेना पर, अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक के बाद एक रशियन ताकत के प्रतीक जिस तरीके से यूक्रेन के द्वारा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या उस पर हमले हो रहे हैं, उससे पुतिन की सत्ता को चुनौती दी जाएगी। हमारे कैमरामैन संजीत आपको पुतिन या कहें कि रूस के विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर भी अभी दिखाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को प्रेसिडेंट पुतिन भी समझते हैं कि अगर जल्द से जल्द जवाब नहीं दिया गया तो फिर रूस के अंदर ही बगावत दिख सकती है। क्योंकि अब बात केवल यही नहीं रहा कि यूक्रेन में रूसी सेना पीछे हट रही है, बल्कि रूस के सत्ता के प्रतीक, वर्चस्व के प्रतीक जो ठिकाने हैं, और उसमें क्रीमिया पुल है। मुझे साफ तौर पर याद है कि जिस वक्त मैं वहां पर गया था, मैंने क्रीमिया के हेड से बात की थी, उस दौरान भी उन्होंने भी ये कहा था कि जिस दिन क्रीमिया पुल पर अटैक होगा उस दिन महाविनाश होगा, उस दिन पुतिन न्यूक्लियर अटैक कर देंगे।